You said needs will be met anyways. Hmm. But if you talk about basic needs like food and shelter, so if we see people who are like begging in the street, so their needs are not being met naturally anyway. Are they natural? In what- Why do they need to be there on the crossing of a metro city? The jungles have enough for them. Why don't they go there? But for that also maybe they need some sense of, because most of the children are born in the street only, right? So what would they know of? Do we have an option of Madam, farming or something? The ones who are there on the streets, they earn many times more than the ordinary man in the villages. It's not their normal need that keeps them begging on the street. It is the attraction of the metro city. Believe me, they earn quite a hefty amount. And most of the children that they show to you in order to get a bigger buck from your pocket, those kids are usually under the influence of some kind of drug. Now, this is not really the fulfillment of a need. This is quite a bit of improvisation in order to meet your desires. Otherwise, we would not be finding so many beggars in the metros and the tourist places. But then what are rather they cost. getting? Means they're so shabbily dressed. ठंड में ठिठुरे होते हैं. I don't know if they eat or not, if they eat properly or not. But what is the point of going They to that have, land? they What share are- exactly the same mind as we do. You have a set of values in which you say that something is pleasurable and other thing is not. You'll have to understand this. You have a set of values in which you know what is pleasurable and what is not. They have read your set of values. They know how to present themselves to you. They share our set of values. They know that if the clothes are not looking all right, an urban woman feels very bad about all this. Now, is it really something to be felt bad about? But they very well know what our value system is, what our code is. They have deciphered that code. They know that we all are ego-ridden creatures who attach great value to pride. They very well know that we will never want to go and open our palm in front of somebody. And if we have to open our palm in front of somebody, how would we feel? We feel ashamed of ourselves. So, when we see another one opening his palm in front of anybody, we feel bad for him. They have read our value system. No different from the advertisers and the hoardings Yes, on the yes, road. yes. Basically, it is a hoarding. In fact, hoarding. if somebody wants to advertise, he should consult a beggar. The beggar knows the mindset of the customer very well. The beggar knows how to draw out money from the pocket of the customer. You are his customer. He Yes. offers you a plea for mercy. A plea for mercy. And what do you give? He knows how to extract money. And that satisfies our ego. That satisfies your ego. Yes. आप डिवाइडर पे अगर खड़े हो जाएंगे, अच्छा इससे एक चीज़ याद है कि आप डिवाइडर पे खड़े हो जाएंगे तो उनको ये पता है कि कौन सी गाड़ी से मांगना है और किस बंदे से मांगना है. आप अगर खुद शैबी से क्लोथ्स में हो, और किस गाड़ी की किस खिड़की पे नॉक करना है. जो मिल अगर जाएगा. गाड़ी की चारों खिड़कियों पे लोग बैठे हैं, उन्हें अच्छे से पता है किस खिड़की से मिलेगा. और अगर छोटा सा बच्चा है अगर गाड़ी में तो मतलब मजा ही आ गया, फिर तो हो गया काम. So they themselves choose this, right? Obviously. अगर उन्हें सिर्फ नीड ही फुलफिल करनी होती, नीड फुलफिल करना बहुत आसान है, बहुत आसान है. See, the moment you उसके said पता भी तो होना चाहिए ना कि कुछ there पता is नहीं another होना option. चाहिए. अगर किसी को पता ये है जो कि कोई ये जो option पता है, होना है, ये नॉलेज नहीं है. ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो सबके पास होती है. जानवर के पास भी होती है. जानवर भी जानता है. तो अगर हम ये कहें कि हमारी नादानी है कि हम जानते नहीं, तो हम धोखा दे रहे हैं. हम सब जानते हैं. ये कमीनापन है, ये नादानी नहीं है. हमें सब पता है.
Can we say same thing? हमारे 2 Is it not कुत्ते थे, हाँ, उनको हम यहाँ पीछे रखते थे बंद करके, उनके लिए एक बना भी दी थी जगह। उन्होंने दुनिया सर पे उठा ली, रुकते नहीं थे, उधर कूद जाएं, ये करें वो करें, हार मान के छोड़ दिया, घूमते हैं मस्त। उनको भी पता है कि उनके लिए राइट एनवायरनमेंट क्या है। उन्हें क्या किसी ने टीचिंग की? अब हम यहाँ पे वो रहते हैं तो हम बल्कि खाना उन्हें ज़्यादा अच्छा देते, बाहर तो पता नहीं क्या खाते हैं क्या नहीं करते हैं। यहाँ पे उनको सुबह शाम का खाना बंधा हुआ था, पर वो नहीं रुके, चले गए। अच्छा, ये जो बेगर्स की हम बात कर रहे थे, जैसे एक बार हम अजमेर शरीफ गए थे तो वहाँ पे तो इट इज़ very pathetic sight. But you know, people with no arms and no legs, and can we say same thing about them also? You know, Do they have we choice? don't need to go to Ajmer Sharif. We need to go to the HR department of some MNC if you want to see beggars. Right? Not even at the appraisal time. In general. तो मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, उसको पकड़िएगा। मैंने कहा था कि beggars share our value system. अब मैं अगली बात बोल रहा हूँ। Only a beggar will feel pity for a beggar because they have the same value system. Beggars very well know that the man in this car is a beggar. He has begged his boss, he has begged his clients, and that's how he has come to this car. He will feel pity for me. The one who is not a beggar will not feel pity for a beggar. The one who is not a beggar will not feel pity for a beggar. तो ये तो एक म्यूचुअल कॉन्स्पिरेसी है, वो अपनी ही कम्युनिटी के बीच में है, जिसमें हमारा भ्रम है कि एक भिखारी है और दूसरा दाता है। ये तो भिखारियों की आपसी मंडली है जिसमें एक दूसरे को थोड़े बहुत पैसे दिए जा रहे हैं। आप चौराहे पर देते हैं, थोड़ी देर में आप कार पार्क करेंगे, फिर आप जा करके ऑफिस में हाथ फैला देंगे। तो कौन भिखारी है और कौन नहीं है, कौन भिखारी है? ये सहानुभूति हो गई फिर उसके लिए, जो पेन मुझे मिल रहा है कहीं से। बिल्कुल। I'm keeping me in his shoes and then ठीक इस भाषा में कहें तो भी ठीक, बढ़िया है, बिल्कुल वही बात है। देखिए, बुद्ध भी अपने सब लोगों को भिक्षु ही कहा करते थे। असली भिखारी वो होता है, ये भिखारी नहीं है, ये तो हमारे जैसा है। ये भिखारी नहीं है, इसको भिखारी मत बोलिएगा, ये हमारा भाई है, इसको बंधु बोलना ज़्यादा अच्छा है। तो ये बिल्कुल ना कहा जाए कि दिल्ली में भिखारी बहुत है, ये कहा जाए दिल्ली में भिखारी ही हैं। ये ना कहा जाए कि क्रॉसिंग पर कुछ भिखारी घूम रहे हैं, क्रॉसिंग पर भिखारी ही हैं, या फिर सब हमारे ही जैसे हैं, या सब राजा हैं हमारे ही जैसे। जो असली भिखारी है वो तो दूसरा होता है, जिसने सब छोड़ दिया। बुद्ध के भिक्षु वो थे जिन्होंने गोल्स ही छोड़ दिए थे, इस कारण वो भिक्षु हो गए कि सब छोड़ ही दिया, अब तो हमें जो अस्तित्व दे वही ले लेंगे, अस्तित्व की भिक्षा है। और फिर जो उनको देता था वो अपना सम्मान समझता था कि आज मुझे इनको देने को मिला। आप जब भिखारी को देते हो तो समझते हो कि मैं बड़ा हो गया, अपना ईगो पोषित होता है। और जब आप बुद्ध के भिक्षु को देते थे तो उसका चरण स्पर्श करते थे पहले, फिर उसको कुछ देते थे। ये अंतर है, एक वास्तविक भिक्षु में और एक हमारे जैसे भिखारी में, ये अंतर है। ये भिखारी नहीं है, ये सब तो हमारी तरह हैं, कामना के मारे हुए। 63 में ही है, तमाम छोटी छोटी ना जरा सी झोपड़ियां बनी हुई हैं, उनमें जाइएगा, सब में ऊपर आपको टाटा स्काई की छतरी दिखाई देगी। निजामुद्दीन से ट्रेन जब क्रॉस करती दिखती है कुछ बिल्कुल सड़ा गला मामला, पर ऊपर टाटा स्काई की छतरी लगी हुई है। लगी हुई। वही सब रहते हैं इनमें, टाटा स्काई है वो चाहिए, वो हमारे ही जैसे हैं, वो बिल्कुल वही सीरियल देखते हैं जो हमें बहुत पसंद आते हैं, वो उन्हें भी बहुत पसंद आते हैं। हमारा उनका जो वैल्यू सिस्टम है वो बिल्कुल एक सा है, बिल्कुल एक सा है, कोई अंतर नहीं है। उनको भी उन्हीं सब चीजों की कामना है जो हमें है। आपको पैसा चाहिए, उन्हें भी चाहिए।
कोई अंतर नहीं है। नहीं, बेसिकली उसमें कॉन्ट्राडिक्शन भी है ना। अगर कोई भिखारी अच्छे, अगर उसके पास, इफ ही इज केपेबल और वो नए कपड़े पहन के आ जाए हमारे पास मांगने, तो क्या हम देंगे? हम पहला क्वेश्चन करेंगे तुम्हारे पास तो ये हम हम उसको ऐसा बेगर कंसीडर ही नहीं करेंगे। वो हमारे भाई देखिए, हमारा वैल्यू सिस्टम क्या बोलता है कि जो ना काबिल है वो डिजर्विंग है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे मूल्य यही तो हैं कि जो ना काबिल है वो किसी खास सुविधा के लिए अब उपयुक्त हो गया। तो आप क्या बोलते हो? आप क्या बोलते हो बॉस से? मेरे साथ ना ये समस्या है, इसीलिए मैं 6 बजे बाद रुक नहीं सकती। तो आपको एक फिर खास सुविधा मिलेगी, क्या? ड्रॉप। कि तुम 6 बजे ही चले जाओ या तुम्हें ड्रॉप मिलेगा। ये हमारे मूल्य हैं कि जो जितना नाकाबिल है उसे उतनी सुविधाएं दो। भिखारी ने पकड़ लिया है। भिखारी कहता है मैं परम नाकाबिल हूं, देखो अब मुझे दो। हम दिन रात और क्या करते हैं? आपसे कोई पूछता है कि तुमने कोई काम क्यों नहीं किया, तो आप कभी सर उठा के थोड़ी कह पाते हो क्योंकि मेरा मन नहीं था। स्कूल में एक बच्चा होता है, उसे टीचर पूछती है क्यों नहीं तुम करके लाए होमवर्क, वो ये नहीं कहता कि मेरा मन नहीं था, वो क्या कहता है? बीमार हो गया या कुछ मैं हो गया। कर नहीं पाया, मेरी काबिलियत नहीं थी, मैं कर नहीं पाया। और ये बचपन से ही सिखा दिया गया। ये हमारे मूल्य है कि तुम अगर नाकाबिल हो तो इसमें कुछ श्रेष्ठता है, फेवर है। तुम्हें अब कुछ मिलेगा। और अगर तुम बहुत काबिल हो तो तुम्हें इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है ना? यही तो हमारे मूल्य हैं, इसी पे तो हम चल रहे हैं। भिखारियों ने पकड़ लिया है, अपने आप को नाकाबिल दिखाओ। ये हमारा मूल्य है कि तुम जितने बेहूदे हो तुम्हें उस बात का उतना ही वजीफा मिलेगा। और जो बेहुदा नहीं है, अबे बॉस भी क्या बोलता है, अबे तू तो छड़ा है, तेरी ना शादी हुई है ना कुछ हुआ है, चल तू 10 बजे तक काम कर। तू क्या करेगा घर जाके? तू क्या करेगा घर जाके? नहीं नहीं सर आप जाओ, आपकी तो नई नई शादी हुई है, बीवी वेट कर रही होगी। ये उसकी काबिलियत है। मुझे याद है कि सॉफ्टवेयर कंपनी से मेरे कुछ दोस्त हुआ करते थे, तो दे यूज्ड टू मेक इट श्योर कि 7 बजे ऑफिस छोड़ दें, क्योंकि आज हमारे पास बहुत समय है और आज देने लगे तो बहुत हालत खराब हो जाएगी, कल जरूरत पड़ेगी नहीं मिलेगी। नहीं, ये बहुत होता है, ये बड़ी सहृदयता की बात होती है। भाई अभी अभी अब हुआ है, ये है वो, जाने दो इसको, जाने दो, कोई बात नहीं। शताब्दी से आ रहा था, 2 मिनट रुकती हो गाजियाबाद, 2-3 महिलाएं, उनके 2-3 से ज्यादा बच्चे और बहुत सारा सामान। ईच तो नहीं था, पर हाँ मतलब टोटल बच्चे उनके 2-3 से ज्यादा ही थे। तो पहले तो उन्होंने रास्ते पर हुड़दंग किया बच्चों ने, अच्छे तरीके से, बिल्कुल पूरे कोच की ले ली। पीछे से आवाज आ रही थी जब आपसे बात हुई? आ रही थी। हाँ। बढ़िया। उसके बाद अब 2 मिनट के लिए रुकनी है, 2 मिनट 2 ही मिनट होता है। उन्होंने जा करके इतने सारे सामान के साथ उस गेट पर कब्जा जमा लिया और उसके बाद बड़े हक के साथ बोली, भैया जरा हेल्प करना। मतलब हेल्प मांग रहे हो? ये हेल्प ऐसे मांगी जाती है? और ये किस बात से तुम्हें इतनी पात्रता मिल गई हेल्प मांगने की? सिर्फ इस बात से कि मेरे 3 हैं। हाँ, और इस नाते पहली बात तो तुम पीछे खड़े हो, पहले मैं उतरूंगी। दरवाजे पे कब्जा जमा लिया पहले ही, इनकॉम्पिटेंट है। मैं उतरूंगी पहले, मेरे 3 है और इतना सारा सामान है। और उसके बाद भैया जरा हेल्प करना। और जितने भैया हैं पीछे वो सब, वो कोई उनके लिए वो वाला जो स्लाइडिंग डोर होता है ना गेट वाला, तो एक स्लाइडिंग डोर पड़ के यूं खड़ा हुआ है ताकि वो निकल रही हैं 2-3 को लेके। एंड फीलिंग ग्रेट अबाउट। हाँ, पूरी बुलंदी के साथ, भैया जरा हेल्प करना। Both helpers also. नहीं, हेल्पर्स आल्सो। Helpers also. Both feeling great.
धीमे शर्म संकोच से मांगेगी तो कोई आगे भी नहीं आएगा ना, तो पूरे हक के साथ। अब इनको कभी ये आभास भी नहीं होगा कि ये बेगिंग है, इनको ये कभी पता भी नहीं चलेगा कि ये भिखारी नहीं है, पर इनको उस पे बहुत दया आएगी, वो जो भिखारी स्त्री चौराहे पे मांग रही है, इसी कारण आएगी क्योंकि खुद भी ये यही करती हैं। पर हाँ, अपने आप को लेबल नहीं देती, उनको लेबल लगा देती हैं। काम वही है, एक ही वैल्यू सिस्टम है, सेम वैल्यू सिस्टम। द वैल्यू सिस्टम दैट इफ आई एम इनकेपेबल आई एम एंटाइटल्ड, माई इनकेपेबिलिटी इज माई एंटाइटलमेंट। तो ये सीधा कह सकते हैं कि जिनको उन पे दया नहीं आ रही वो अपनी लाइफ में भी भिखारी नहीं है। बेशक कह सकते। देखिए, हम दो चीज़ों में जीते हैं, या तो हम मर्सी होंगे, मर्सीफुल होंगे, या हम मर्सीलेस हो जाएंगे। इन दोनों ही स्थितियों में हम जी भावनाओं में ही रहे हैं। एक हो सकता है जो कहे अरे भिखारी आ गया, भिखारी आ गया, इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, क्या तू 2 रुपए दे रहा है, चल यार कम से कम 20 का नोट निकाल दे दे। दूसरा कहेगा ये भिखारियों ने गंद मचा रखी है। पता है, आई वॉज इन सैन फ्रांसिस्को एंड दे हैव अ नो बेगर्स पॉलिसी। Similarly, even in LA, and you know what Melbourne did? They actually took all these people and relocated them outside the city. तो I really hate beggars, you know, they stink. दूसरा ही हो सकता है, दोनों एक है। तो जो दया कर रहा है बेगर पे और जो दया नहीं कर रहा है वो एक ही है। दोनों में से ही कहानी का तत्व तो कोई नहीं देख पा रहा है। और जो ये सोच रहे हैं कि ये कुछ और काम भी कर सकते हैं बजाय कि इसके कि इतने तो कैपेबल हैं ही, कि जैसे दिखता ही है कई बार बच्चे हैं, बच्चों को लेके घूम रहे होते हैं, वो कोई और काम नहीं करेगा, नहीं करता हूँ। क्योंकि उनका काम है ये, उनके लिए कोई काम है। आप सब लोग आते हो यहाँ बैठते हो, आप कितने काम धंधे करते हो पूरे हफ्ते। मुझे भी लगता है आप पता नहीं क्या क्या और कर सकते हो, पर आप नहीं करोगे। बीइंग व्हाट यू आर, you will not choose any other profession. Your profession flows from the quality of your mind. आप जो हो आप वही धंधा तो चुनोगे ना। आप जो हो आप वही धंधा तो चुनोगे ना। आप भिखारी अकस्मात नहीं हो जाते, आपने भिखारी होना चुना है। भिखारी होना आपके जीवन का प्रतिबिंब है। परिस्थितिवश आप भिखारी नहीं हो गए मात्र, कुछ है आपके भीतर जो आपके भिखारीपन में सहायक है, अन्यथा भिखारी नहीं रहे होगे। और दिल्ली तो भिक्षावृत्ति का केंद्र है, दूर दूर से लोग आते हैं यहां पर भिक्षाटन के लिए। आप क्या बोल रहे हो कि वो कुछ और भी कर सकता है? वो उठ के आया है बिहार से सिर्फ भीख मांगने। आज ये भिखारी है, आज इसको मस्त आमदनी हुई है, आज दिन की इसकी कमाई है 550 रुपए। ये शाम को जाता है, मोबाइल निकालता है, छोटे भाई करता है, अबे तू भी आ जा, सही कमाई हो रही है। अब क्या बोल रहे हो कि कुछ और भी कर सकता है? वो चुन चुन के यही करना चाहता है, वो और कुछ करना ही नहीं चाहता। वो चुन चुन के करना ही यही चाहता है। देखिए, जैसे हम जीवन को नहीं समझ पाते ना, जैसे हम किसी के भी चेहरे को नहीं पढ़ पाते, वैसे ही हम भिखारी के चेहरे को भी नहीं पढ़ पाते। ये जो बच्चा है जो आता है और आपकी गाड़ी की शीशा साफ करता है, पहले करता है, फिर कहता है 2 रुपए देना, उसने भी आपका जो मूल्य है वो अच्छे तरह से पढ़ लिया है कि नाउ दैट द वर्क हैज बीन डन यू मस्ट पे। मैंने काम करा है ना, पैसे निकालो। भीख थोड़ी, काम करा ना, शीशा साफ किया। अब भले आप चिल्ला रहे हो कि भाई शीशे पे खरोच मार क्या कर रहा है, वो करेगा, अपनी पूरी फाइट मार कर देगा। उसने आपका वैल्यू सिस्टम पढ़ लिया है। ऐसा थोड़ी है कि आप बोलो उसे आप कुछ और करा के दिखा दो। कई लोगों ने कोशिश की है कि इनको कुछ और करा के दिखा दें। रिटर्न ऑन एफर्ट बहुत अच्छा है भिखारी होने में, वो कुछ और करना नहीं चाहेगा। मैं आपसे एक दूसरा उदाहरण पूछता हूं। Wherever I look at housewives, this question comes to me, क्या ये कुछ कर नहीं सकती थी जिंदगी में? जीवन भर इन्होंने भिक्षावृत्ति ही तो करी है। ये लोग
नाटक कर रहे थे। तो उसमें ये था कि एक औरत है, उसका पति कमाता है भाई जो 70,000 लाख रुपए महीने के, उसमें से वो उसको महीने के घर आकर के 30,000 दे देता है कि ये तेरे हैं हर महीने के। तो आती है और ईमानदारी के, आंतरिक ईमानदारी के एक क्षण में वो अपने आप से सवाल करती है कि मैं क्या क्या काम करती हूँ। वो कहती है मैं बर्तन धोती हूँ, उसके 1,000 रुपये, मैं पोछा लगाती हूँ, उसके इतने, इसके इतने, कुल मिला जुला के जो मैं काम करती हूँ महीने का वो 4-5 हज़ार रुपये का है, और मुझे मिलते हैं 30, तो बाकी 25 किस बात के मिलते हैं। और ये जो लाइन थी बड़ी महत्वपूर्ण थी, और ये हर गृहिणी को अपने आप से पूछनी चाहिए कि मैं जो काम करती हूँ उसकी तो कुल कीमत इतनी ही है, तो मुझे बाकी मिलता है वो किस बात का मिलता है। तो अक्सर मैं सोचता हूं उनको देख के कि क्या ये कुछ और कर नहीं सकती, पर वो नहीं करेगी क्योंकि उसे मुफ्त का काफी कुछ मिल रहा है। वो नहीं करेगी ना, क्यों करेगी, क्यों करेगी। मैं भी कुछ को जानता हूं, मैंने उनसे कितनी बार कहा है कि कुछ करते क्यों नहीं। तो पहले तो ये होता छोटे बच्चे उनकी जिम्मेदारी है, अच्छा ठीक बच्चे बड़े हो गए, अब कुछ करते क्यों नहीं, उधर कोई बात। पर ये पक्का है कि वो कुछ करेगी नहीं। क्यों करे, क्यों करे। अरे रिस्पेक्टेबल काम है भाई, घर पे बैठे हो, पति पे पूरा अधिकार है, पति की तनख्वाह पे पूरा अधिकार है, घर पे पूरा अधिकार है, होम मिनिस्टर कहलाते हो, क्यों करो काम। जरूरत ही क्या है, इतना कुछ मिल तो रहा है। मैं इसीलिए चाहता था कि ये बात कम से कम जो हमारी जवान यंग फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको क्लियर हो जाए कि काम तो जो मैं करती हूँ 4-5 हज़ार का है, तो बाकी 25,000 मुझे किस बात के मिलते हैं। देह की कमाई है, वो भिखारीपन से भी नीचे की बात है। आप कोशिश करके देखिए, कभी भिखारी बच्चे को बोलिए काम करेगा, वो ऐसे भागेगा ना, जुप। पैसे नहीं देना तो मना कर दो, क्या बेकार की बात कर रहे हो। नहीं देना तो मत। वो है ना, दोबारा मत बोलना। अभी पूछ लिया तो पूछ लिया, दोबारा मत बोलना कि काम करेगा।